नाज़रीन, सबसे पहले डीसी कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से खबर शामिल करते हैं। फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां मोहम्मद इलियास महर को बाज़ाब्ता तौर पर टिकट जारी कर दिया गया, जिसका ऐलान सरपरस्त आला हाजी परवेज भट्ट ने किया। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडर ग्रुप डीसी कॉलोनी इंतखाबात में वाज़े बढ़तरी से फतहयाब होगा। डीसी कॉलोनी के रिहायशी बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि 3 सालों में सोसाइटी को किस तरह दीमक की तरह सफाया किया गया। सोसाइटी के कीमती असासों की बंदर बांट करके रिहायशियों के हकूक पर डाका मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि इनके एहतसाब का वक्त आ गया है। डीसी कॉलोनी के रिहायशी वोटों की ताकत से उन्हें नॉक आउट कर देंगे और उनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। फाउंडर ग्रुप के रिहायशियों के हकूक का जामुन और निगहबान है हाजी अमजद सलीम भट्ट की क़यादत में फाउंडर ग्रुप इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा। इन ख्यालात का इजहार मियां मोहम्मद इलियास महर ने फाउंडर ग्रुप और रिहायशियों डीसी कॉलोनी के एजाज में दिए गए इशाया के मौके पर किया, जिसमें हाजी अमजद सलीम भट्ट, मोहम्मद नसीर चीमा चौधरी, मोहम्मद मौजम अली महर, मोहम्मद फारूक शेरा, जाहिद याकूब, मलिक मुदस्सिर अहमद चीमा, हाजी टीपू सुल्तान, राना अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर अशफाक अहमद मियां, अम्मार जफर जिशान, मुगल मोहम्मद शहजाद भट्ट, हाजी परवेज भट्ट, मोहम्मद इरफान भट्ट, मोहम्मद इमरान भट्ट मियां, मोहम्मद राशिद चौधरी, मोहम्मद नासिर, राना अब्दुल कादिर और दीगर ने शिरकत की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کی اس تقریب کے میزبان ہمارے ایگزیکٹو ممبر میاں محمد الیاس محر صاحب ہیں، اور یہ محفل آج ان کی طرف سے سجائی گئی ہے، اور فاؤنڈر گروپ کے صدر کے امیدوار جناب حاجی امجد سلیم بٹ صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور ان کی رجیم تشریف فرما ہیں، اور آپ سب کی آمد جہاں جہاں سے دوست ووٹر حضرات تشریف لائے ہیں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ 12 مارچ ڈی سی کالونی کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہوئی ہے،
اور آپ کا یہاں تشریف لانا، ہمارے ساتھ مل کے بیٹھنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس طرح دوست احباب کو اکٹھا کر کے فاؤنڈرز گروپ کا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں، روزانہ یہ بات ہوتی ہے، چھوٹی محفل میں بھی ہوتی ہے، 1 to 1 آپ کے گھروں میں جاتے ہیں تب بھی ہوتی ہے، جب اس طرح مل کے بیٹھتے ہیں تب بھی ہوتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ تو گلشن حیات میں ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے انتخاب کی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا شکر گزار ہوں جناب میاں الیاس صاحب کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت گیدرنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کو اپنا تعارف کرا سکیں، اپنے خیالات کو متعارف کرا سکیں۔ بے شمار میٹنگز ہو رہی ہیں روزانہ، بار بار ایک بات کر کر کے بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ نئی بات کیا کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی رجیم میں کیا ہوا اور اس سے پچھلی رجیم میں بٹ صاحب نے الحمدللہ کیا تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں جو ہیں اس کے لیے رہائشیوں کے لیے جو ہے وہ کام کیے۔ میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے جو وقت ہمارے پاس 12 مارچ تک ہے اس پہ، اور جو 12 مارچ سے لے کے اگلے 3 سال ہے اس پہ۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ انسان کی موت اس وقت واقعہ نہیں ہوتی جب اس کی روح پرواز کر جائے، اس کی موت اس وقت واقعہ ہوتی ہے جب اس کی سوچ مر جاتی ہے، جب اس کی سوچنے کی، کمپیریزن کرنے کی، پرکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک وقت ہے یہ 15 دن، اس میں ہم محنت کریں، آپ لوگ محنت کریں، اجاگر کریں اس شعور کو کہ ان لٹیروں کو جنہوں نے تازہ لوٹا ہے، ابھی ان کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ رہائشی ہیں، آپ کوئی باہر سے نہیں آیا، پہچانتے ہیں ان لوگوں کو۔ گو کہ ان کی زبان بڑی شیریں ہے، ان کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، لیکن آپ لوگ بھی زیرک ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، اللہ نے آپ کو شان و شوکت دی ہے، بڑے بڑے گھر دیے ہیں، اللہ اسی کو عزت سے نوازتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ لیکن بھائی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ 12 دن ہم روتے رہیں اور آہگزاری کرتے رہیں یا اگلے 3 سال ہم نے روتے رہنا ہے۔ تو میں تو کل بھی ایک ڈاکٹر اشفاق صاحب نے محفل کا بڑا اچھا ایک انتظام کیا تھا، وہاں پہ بھی میں نے بڑا کمپیریزن کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ اپنے خیالات کو بیان کر سکوں۔ اس میں یہ ہے بھائی کہ ہم جو ہے نا فردن اگر ایک بندے کے پاس جائیں، محنت کریں، جو کہ ہم نے کی بھی ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ کی ہے، کچھ لوگوں نے کم کی ہے، اگر ابھی ہم وہ کریں کام تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے معاونین بنیں۔ میں اگر ایگزیکٹو ممبر کا کینڈیڈیٹ ہوں تو مجھے کوئی انعام یا تنخواہ نہیں ملنی، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کی تنقید مل سکتی ہے، آپ لوگوں کی تعریف مل سکتی ہے، لیکن کوئی مراد نہیں مل سکتے۔ اگر میں اس چیز پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں اور اس میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ ہمارے جو ہمارا پینل بنا ہے اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں، اگر آپ اس پہ اطمینان پائیں تو ہماری مارکیٹنگ کریں، ہمارے نمائندے بنیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد 2 4 5 ہمسائے ہیں اس کا ایک ہلکا باب ہے، تو اس کو متحرک کرے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ چونکہ آج کل بھائی ذرا تھوڑی توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، آج کل ہر بندے کا ہر بندے سے تعلق ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم برے بندے کو برا کہنے سے اجتناب کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم ہر بندے سے جناب بسم اللہ، جناب علی، حاجی صاحب، بھائی یہ منافقت جو ہے نا یہ بہت مہنگی پڑتی ہے ہمیں۔ تھوڑا سا ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے۔ جن لوگوں نے تازے کرپشن کے بلنڈر کیے ہیں، خدا کا واسطہ ان کو ایکسپوز کرنے میں آپ لوگ متحرک ہوں گے تو آپ سوسائٹی کو بچا پائیں گے۔ میری ایک میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں چونکہ بینکرز کے ایک پینل کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نجی بینکوں سے قرضے لینے کے لیے بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں۔ آپ ہر اس گھر کے معاملے کو دیکھ لیں کہ جس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدن کم ہوتی، یا وہ مقروض ہوتا ہے یا وہ نوسر باز ہوتا ہے۔
तो कितनी को नौसरबाजी कर लेंगे। जैसे पेट्रोल पंप की जगह पेट्रोल पंप अप्रूव हुआ, बना नहीं सके ये 3 साल में। इन्होंने सिवाय ये छोटे छोटे रोड्स के ऊपर पैचेस लगाने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सके। यहाँ पे रहायशियों को इतने प्रॉब्लम है, जैसे मेड्स का प्रॉब्लम है, लिस्टेड मेड्स ही कोई नहीं है जिन्हें हम काम वालियाँ या खादमाएँ कहते हैं। ड्राइवर्स का कोई जो है वो इंतज़ाम नहीं होता। लोग यहाँ पे दूध वालों से तंग हैं। एक दूध वाला दूध सप्लाई करता है, 3-4 माह बाद वो जासूसी करके डकैती भी करवा देता है। तो कोई निज़ाम होता है हर चीज़ का। आपके जिस्म का भी निज़ाम है, आपकी फैक्ट्रियों के अंदर निज़ाम बने हुए हैं। जब आप अपनी फैक्ट्रियों में जाते हैं तो हर एक चीज़ की तरतीब है, बेतरतीबी तो कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। तो पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बड़ा खूबसूरत सा किचन है, उसमें हर चीज़ है पकाने के काबिल, गोश्त है, सब्जियां हैं, घी है, लेकिन पकाने वाला नालायक बंदा, उसको पता ही नहीं कि पकाना कैसे है, इसलिए वो जो भी करेगा वो बेजायका ही होगा। हमारी सोसाइटी में भी वो लोग ज़्यादातर आगे आ रहे हैं पैसे लगा के, पैसे की बुनियाद पे, कि जिनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब ये देखें बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे जो बंदा एक दफ़ा इक़्तिदार में आता है वो समझता है कि मेरे बाप की जागीर है। हम मसाले देते हुए हमें शर्माना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाफ की बड़ी शानदार मसाले हैं, लेकिन यूरोप या अमेरिका या जो मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन मलेशिया, तो वहाँ पे भी जो है वो डिबेट्स मुनक्कद की जाती हैं। भाई आ जाओ, आप सब लोग एक जगह पे थोड़ा थोड़ा घंटा घंटा 1.5 घंटा अपने मंशूर का प्रचार करो, देखो बताओ क्या करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि गायबाना आप लोगों के ख़िलाफ़, आप लोगों के हक़ में कैंपेन्स होती हैं, उसका नतारा नहीं निकलता। तो मेरी गुजारिश ये है, अपने बेटों को मुतहर्रिक करें, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो मैं बस मुख्तसर करता हूँ बात कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को मुतहर्रिक करें। ये मीटिंग्स बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन मीटिंग से अगले अज़म पैदा करें और ये खिदमत के जज्बे से करें। आप अपनी सोसाइटी की जो खिदमत जिस पैनल को सौंप रहे हैं, अगर आप वो ईमानदार सेलेक्ट करेंगे तो सोसाइटी इंशाल्लाह ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। सब दोस्तों नू अस्सलाम वालेकुम। जनाब बड़ी खुशी हुई जनाब सब दोस्तों नू मिल के, देख के, बैठ के, तो इंशाअल्लाह असीं पूरे इस पैनल नू अल्लाह ताला दी मेहरबानी दे नाल जितलावांगे भी और कोशिश भी करांगे जितों तक हो सके असीं जनाब हर कदम कदम इन्हां दे नाल ना जनाब, और अल्लाह ताला इन्हां नू कामयाबी ते कामरानी दा करे। अज देख के सब दोस्तों नू बहुत खुशी हुई, खास तौर पर भट्ट साहब नाल मेरा कोई पहले तारफ नहीं सी। एक दफ़ा मैं इन्हां दे दफ्तर च गया बस सलाम करने वास्ते कि सिफते हसन साहब बैठते सन उत्थे, ते उत्थे भट्ट साहब बैठे सन। हालांकि पहले कोई शनासाई नहीं सी मेरी, ते भट्ट साहब ने मैनू बड़े अच्छे तरीके नाल मैनू वेलकम किया और मैं इनका उस दिन भी बड़ा मशकूर। तो अल्लाह ताला इस पूरे पैनल कामयाबी ते कामरानी देवे। और बॉर्डर टाउन के जिन्हें मेरे दोस्त ने और सब इस पूरे पैनल में इंशाअल्लाह दुआ को भी ने और हर तरह की मदद करने वास्ते भी तैयार ने, और अपना वोट भी इंशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जनाब कास्ट करांगे सी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 12 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ 2-3 ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਭੱਟ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
भाई जान करप्शन की बातें तो हर रोज़ होती हैं कि उसने इतनी करप्शन की। आज एक और इन्होंने ना इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि इनकी आपस की बातें हैं। इन लोगों ने अपने ग्रुप के साथ हलफ दिए हुए थे, कुरान पे हलफ दिए हुए थे कि हमने अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना और करप्शन को ख़त्म करना है। बाद में पता चला है कि इन्होंने मशवरा किया, यार आतिफ चीमा भाई जो है उसने तो अरबों रुपया कमाया है, तो हमारा ग्रुप तो हार जाएगा। और वो लोग जिनमें इम्तियाज़ अहमद साई साहब हैं और आमिर यकूब वड़ाई साहब हैं, उन्होंने अपनी कस्में भी तोड़ दी, वादे भी तोड़ दिए और अपने ग्रुप के साथ बेवफाई की और उसी करप्ट ज़्यादा जिसको वो करप्शन का बादशाह कहते थे उसके साथ ही जा मिले। तो अब भाइयों से गुजारिश है कि आप ज़रा देख लें कि ये हमारी सोसाइटी का क्या हाल हुआ है। ना कोई हार्टिकल्चर बचा है, ना कोई रोडों की मरम्मत हुई है। इन्होंने एक भी काम नहीं किया। जो काम हुए हैं वो सारी पिछली रजीम में हुए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप का साथ दें। सब भाई घरों से निकलें और वोट डालें और फाउंडर ग्रुप को कामयाब करें। हमारा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए काम होंगे। आप भाइयों का शुक्रिया, फाउंडर ग्रुप का साथ दें। ये इलेक्शन हक और बातिल के दरमियान है, करप्शन और सदाकत के दरमियान है। ये जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, डीसी कॉलोनी की बका की जंग लड़ रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि डीसी कॉलोनी के बासी जो इधर रहायश पजीर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर लोग हैं, क्या उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है जो हमें बाहर से इंपोर्टेड लोग या पैराशूटर्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि डीसी कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े ब्रेन हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो इस सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जो सोसाइटी की खिदमत बड़े अच्छे और अहसन अंदाज में कर सकते हैं। हमें बाहर से आने वाले जो बहरूपिये हैं, जो हर रोज नया रूप धार कर डीसी कॉलोनी के एसेट्स और इसके रहने वालों के जो हुकूक हैं उन पर डाका डालते हैं, मैं ये कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि पिछले 3 सालों के अंदर जो सोसाइटी के रहने वालों के साथ 1 और 2 के अंदर और एक्सटेंशन 3 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनके साथ जो जुल्म किया गया, सोसाइटी के एसेट्स तो कम हो गए और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनकी इन्वेस्टमेंट कम होके जो 20 लाख पे थी वो 5-6 लाख पे आ गई। इनकी अकबरा परवरी की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से हमने उन बंदों को सिलेक्ट किया जिनको तो शायद अपने घर वाले भी पूरा इख्तियार ना दें, जो अपना घर नहीं चला सकते। वो 30-35 लाख की आबादी है, 35,000 की आबादी है डीसी कॉलोनी के अंदर, 25 से 2600 रहायशें हैं इधर, मैनेजिंग कमेटी है। भाईजान, ये ओहदा उन लोगों को दें जो इसके अहल हैं, जो इसको एहसन तरीके से चला सकें, जो इसमें मैनेजमेंट कर सकें, ना कि ब्रोकर्स को। अगर मुझे आप वोट देते हैं, मैं कल को ब्रोकरी शुरू कर दूं,
प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दूं तो फिर प्रॉपर्टी डीलर क्या करेंगे? ये प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को भी सोचना चाहिए, रहायशियों को भी सोचना चाहिए। ये इलेक्शन मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है, मैनेजमेंट करने का नाम है। हमें सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। हमें इधर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, उनके हालात बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 3 सालों के अंदर स्वाय प्लाट्स की बंदर बांट के और अपनी जेबें भरने के और कुछ नहीं किया गया। ये मेरा इलाका है, सतलुज मेरा 7 घर है, इधर 197 सतलुज मेरी रहायश है और ये सोसाइटी का ऑफिस है 7। आप इधर रोड्स की हालत देख लें, ये 7 पार्क है, इसको देख लें, इससे आगे पार्क है, उसको देख लें, सफाई की हालत देख लें, सिक्योरिटी का निज़ाम देख लें। इन्होंने 3 साल अकबरा परवरी की, करप्शन की, क्योंकि इन्होंने इधर रहना ही नहीं था। जो मेरा मद्दे मुकाबल है वो कैंट में रहायश पजीर है और एक वो जो वाबडा टाउन से आए हैं उधर उन्होंने क्लॉक टावर बनाया हुआ है। अगर डीसी कॉलोनी वालों ने अल्फा टावर बनाना है तो फिर उनको वोट कर लें। उनका क्लॉक टावर बहुत मशहूर है, वो यहां तक ही नहीं रुकते, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर। अगर कोई दोस्त भाई देखना चाहे तो मैं पेश कर सकता हूं, मैंने नहीं लिखे। साउथ अफ्रीका से ये कहानी शुरू होती है और डीसी कॉलोनी में आगे हैं। भाईजान इनको पहचाने, इनका मुहासबा आप लोगों ने करना है। मैं और मेरा लीडर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब और हमारे फाउंडर ग्रुप के जितने अकाबरीन हैं, हम सब के सब मैदान अमल में हैं। हम उनका रास्ता रोके हुए हैं और उनके सामने, इस माफिया के सामने खड़े हैं। हर रोज ये माफिया कोई ना कोई नई चाल चलता है। परसों की बात है, बल्कि कल या परसों की, कि हमारे सोसाइटी के अंदर हम जितने घर खरीदते हैं इसकी स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो गवर्नमेंट को हमने तो अदा कर दी है, लेकिन सोसाइटी में ये 3 साल वो भी खा गए हैं। 18 से 19 करोड़ रुपया है। हर बंदा, छोटी सी ये महफिल है लेकिन भरपूर तरीके से उनको खुश आमदीद कहे, भरपूर क्लैपिंग के साथ आप सबकी भरपूर तालियों में हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी इलियास साहब का और दूसरे उनके दोस्त अहबाब जिन्होंने ये महफिल यहाँ सजाई है हमारे लिए, कि हमें मौका दिया है कि हम मेंबरान से बात कर सकें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। बातें तो आपने बहुत सुन ली, करप्शन का भी सुन लिया और दूसरी बातें भी सब सुन ली कि क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरा पहला दौर जो था वो भी आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम किए हैं जो पिछले 21 साल में नहीं हुए थे और अल्लाह ताला हमें मौका देता है। आप लोगों की मदद से, अल्लाह की रहमत से हमें इज़्ज़त मिलती है, तो हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 सालों में बहुत सारे तरक्याती काम जो हमारे दौर से रुके हुए हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ये देखिए, सोसाइटी के जो एसेट बच गए हैं, हमारा एम है कि हम उनको बिल्ड करें, नहीं तो हर बंदा जो आता है वो उसका उस तरफ ध्यान हो जाता है किसी तरीके ये मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी बिल्ड करें ताकि उनके किराए की मद में जो हमें आमदन होगी, सोसाइटी खुशहाल होगी, सोसाइटी आमदन में जाएगी। तो हम जो यूटिलिटी बिल्स जो जाते हैं घरों में बहुत बढ़ गए हैं, तकरीबन हमारे दौर में कुछ 1500, 1600 तक था, लेकिन अभी मेरा ख्याल में 3000 के करीब हो गए हैं
ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ سوسائٹی عام جو آپ کی رجسٹری ہوتی ہے محلوں میں شہروں میں اس جیسی یہ سوسائٹی نہیں ہے. ہمیں جو فائل ملی ہے ہم اس کے پارٹنر ہیں, اس کے ممبر ہیں. ہم نفع نقصان سوسائٹی کا جو ہوگا وہ ہمارے اوپر ڈلے گا. اگر ہمیں نفع ہوتا ہے تو ہمیں نفع میں حصے دار ہیں ہم, اگر نقصان ہوتا ہے تو حصے دار نقصان میں بھی ہمیں گھروں میں ٹیکس آ جائے گا نا, ٹیکس کے طور پر سوسائٹی کا عملہ جو بیچے گا کہ اتنا اتنا نقصان ہو گیا, سوسائٹی نہیں چل رہی, آپ 50,000 ہزار یا لاکھ یا 2 لاکھ جمع کراؤ. یہ ہمارے پنجاب کی ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں, وہ باقاعدہ اپنے ممبرز کو چیک بھیجتی ہے کیونکہ وہ پرافٹ میں ہے, پنجاب کی سب سے امیر ترین سوسائٹی ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ محل وقوع کے حساب سے ہماری سوسائٹی بہت ہی اچھی جگہ پہ ہے, بہت ہی اچھا ان کا موسچر ہے. یہ آکسیجن کی ریشو جو ہے وہ سب سوسائٹیوں سے بہتر ادھر ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 12 مارچ اتوار والا دن ہے, ہم لوگوں کا ساتھ دیں, فاؤنڈر گروپ کا ساتھ دیں, فاؤنڈر گروپ کے پورے پینل کو ووٹ دیں, ہماری طاقت بنے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا, آپ خوش ہوں گے کہ ہم فاؤنڈر گروپ کو ہم نے ووٹ دیا اور اتنے اچھے کام جو رہ گئے تھے ہم وہ پورے کریں گے. ہمارے پاس ایک 14 ایکڑ پونے 14 ایکڑ جگہ ہے جس کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی اور 20 لاکھ روپیہ کنال کے حساب سے انہوں نے بیچنے کی کوشش کی. ہم لوگوں نے کوشش کر کے اس کو ابھی تک سٹے میں لے کے جا رہے ہیں, ابھی تک اس پہ سٹے چل رہا ہے. ہمارا پلان ہے, ہم نے اب ابتدائی اپروول کنٹرول بورڈ سے لی ہوئی ہے, اس میں تقریباً سٹیڈیم ہمارا بنے گا. جیسے بہت سارے لوگوں نے لاہور والا فوٹو سٹیڈیم دیکھا ہوگا, اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن اسی شکل کا ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس میں تقریباً 12,000 افراد کی بیٹھنے کی گنجائش ہے. ہر قسم کی سپورٹس ہوگی, اس میں ہاسپٹل بھی ہوگا, اس میں کمیونٹی سینٹر بھی ہوگا, لیڈیز جم بھی ہوگی, بچوں کے لیے بھی جم علیحدہ ہوگی, لیٹسٹ ہر قسم کی سہولت ادھر موجود ہوگی. جو ہمارے اثاثے ادھر بچے ہیں کمرشل, ہم ان کو بھی بلڈ کریں گے. ہم دیکھیں ایک گروپ ایسا ہے جو بہت بڑا ایمانداری کا دعویٰ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کا جو چیئرمین ہے نا, اس نے سٹے لیا ہوا ہے نا بیکن ہاؤس پہ. جب ہم نے بیکن ہاؤس دیا تھا, وہ سکول ہماری بلڈنگ جو ہے 1.5 سے 2 ارب روپے کی بلڈنگ ہے, اس کا انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے کہ ہم نے بیکن ہاؤس نہیں بننے دینا ادھر. جب ہم نے بیکن ہاؤس کو دیا تھا اس وقت 186 بچے یہاں سے سوسائٹی سے جاتے تھے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سوسائٹی کی ترقی کے وہ خلاف ہیں. انہوں نے کوئی ہمیں ایسا کام نہیں کرنے دیا. اگر ہم ان کی درخواستوں پہ جاتے تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. ابھی تک میرے اوپر جو کیس چل رہے ہیں, ہم نے سوسائٹی کے ترقیاتی کام کو روکا نہیں, نہ ہم نے اپنے اوپر جو درخواستیں ان کی پرواہ کی تھی. ہم جب آئے تھے 8 سے 10% فیز 2 کا کام مکمل ہوا تھا. ہم انشاءاللہ اللہ نے ہمیں ہمت دی, ہم نے 100% اس کا کام مکمل کر کے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہزاروں رہائشیں ہیں اور بے شمار گھر جو زیر تعمیر ہیں. آپ ہمیں موقع دیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری پوری ٹیم مل کر آپ لوگوں کی توقعات پہ پورا اتریں گے. 12 مارچ اتوار والا دن یاد رکھیں, خود بھی ووٹ کریں اور جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ساتھ لے کے آئیں, پوری سپورٹ کریں. جب آپ پوری ہماری طاقت بنیں گے تو اس سوسائٹی کا بھلا ہوگا. ہم سوسائٹی کا بھلا چاہتے ہیں, ہم اپنے لیے نہیں. میں آپ کے سامنے الفن کہتا ہوں, خدا کی قسم, الیکشن جو میں لڑ رہا ہوں میں سوسائٹی کے لیے لڑ رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا. آپ لوگوں کی مدد سے, اللہ کی رحمت سے ہمیں عزت ملتی ہے. ہم دفتر میں بیٹھیں گے,
आप लोगों के तावन के साथ हम एक टीम बनाएंगे, हर ब्लॉक से मेंबर्स लेंगे जो बाकायदा रजिस्टर होंगे, जो रिटायर लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उन तकरीबन 100-150 लोगों की एक हम टीम साथ रखेंगे। जो भी काम होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ सबके सामने होगा। ना कोई इतवार वाले दिन कोई फैसला नहीं होगा, रात को कोई फैसला नहीं होगा, सरे आम सारे फैसले होंगे, जो एग्रीमेंट्स होंगे या कुछ और जो भी काम होंगे सबके सामने करेंगे। हम लोग जो सोसाइटी की सहूलियत है इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो 2-3 चीज़ें हैं, हार्टिकल्चर है, सफाई है और सिक्योरिटी है। मेरे ख्याल में ये 3 काम जो है ना सबसे अहम है। मैं आपसे वादा करता हूँ हार्टिकल्चर का महकमा पहले मेंबर्स को देते थे, लेकिन मैं वो महकमा अपने पास रखूँगा, हार्टिकल्चर और सफाई का। और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं इनके ज़िम्मे हम सिक्योरिटी का निज़ाम लगाएंगे ताकि हम इंशाल्लाह ताला ये दो काम है ना, ये हमारा पूरी क़यादत का महवर होगा कि ये हम काम करें। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैंने ये 4-5 ब्लॉकों में जो कैमरे लगवाए हुए हैं ना उनका सिस्टम सारा अंदर लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जो कैमरे लगवाए हैं ना 50-50 हज़ार वाला बिल बना के 5-5 हज़ार वाले लगवाए हैं, उनके कनेक्शन नहीं है। ये आपकी आंखों में धूल झोंकी हुई है, सिर्फ वो कैमरे लगा दिए गए हैं। आम आवाम को पता नहीं है कि कैमरे इन्होंने लगा दिए हैं, नीचे उसकी तारे को कनेक्शन नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। 3 सालों में इनसे पेट्रोल पंप की तरफ ध्यान नहीं गया। आखिरी 2 महीनों में वो 2 बिल्डिंग बना के कमीशनें खा के, वो मेरे ख्याल में उसका पहला बिल जो था 46 लाख का था, ये 1,70,00,000 में ले गए हैं ना उसको। जो बिल्डिंग बनी है 3 कमरे हैं, मेरे ख्याल में 50 लाख से ऊपर उसके खर्चा नहीं है ना। अगर हम लोग बनाते तो उसको 50 लाख में आराम से ठेकेदार बना के दे सकता है। अब पता नहीं उधर चादरें लगा के कोई रह रहा है, इनका कोई मुलाजम या इनका कोई भाई रिश्तेदार उसको उधर रिहाइश दी हुई है ना। तो ये लोग काम करने की नीयत से आए नहीं। उन्होंने फेज़ 1-2 के लिए एक भी इजलास नहीं बुलाया, सिर्फ फेज़ 3 खरीदो बेचो यही काम उन्होंने किया है। जो हमारा नक्शा पास हुआ है एक्सटेंशन 3 का, हम उसको आते ही बिल्ड करेंगे। और डीलर हजरात को भी, हम सब डीलर हजरात को, चाहे कोई हमारा खिलाफ जा रहा है चाहे वो हमारी हिमायत में है, हम सब डीलर हजरात को बुला के उनसे मशवरा करेंगे कि ये जो सोसाइटी नक्शा पास हुआ है उसको हम फौरी बिल्ड करना चाह रहे हैं, और जो 15-15 किलोमीटर दूर जाके जो इन्होंने खरीद के फाइलें बनाई हैं उनका क्या हल है, जो उसका बेहतरीन हल होगा, जो हम सब फैसला करेंगे कि ये हल इसका बेहतर है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम किसी भी काम के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने फेज़ 3 नहीं बनाना, हम इंशाल्लाह ताला जो नक्शा पास हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं और फ़ौरन आते ही उसका काम शुरू करेंगे, बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आखिर में दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 12 मार्च इतवार वाला दिन याद रखें। ये कल से कोई अफवाह चल रही है कि स्टे हो गया, इलेक्शन आगे हो गया, कोई ऐसा काम नहीं है। सोमवार को सेक्रेटरी ने बुलाया है, कुछ वोटों का उन्होंने इंदराज कराने के लिए दराज दी है, वो इंशाल्लाह ताला मंडे को मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो 12 मार्च की तारीख हुई है वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे हुई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ, इसलिए उसमें कोई कदगन नहीं लग सकती। इलेक्शन लेट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। आप लोग 12 मार्च संडे वाला दिन याद रखें, फाउंडर को सपोर्ट करें, वोट करें, अपने दोस्त को ला के वोट का सही इस्तेमाल करें। हमारे पूरे पैनल जो सारे रिहायशी हैं पूरे पैनल को वोट दें। कोई जैसे पहले बात हुई है, कोई ये नहीं कि एक उधर कोई रिश्तेदारी, सब ये आड़े नहीं आनी चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरे पैनल को कामयाब करें, हमारी ताकत बने, हम लोग आपको काम करके दिखाएंगे। मैं आखिर में सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रहीम सारे दोस्तों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ महफिल ਚ ਆ ਕੇ बैठे ने ਤੇ फाउंडर ग्रुप ਦੇ ਸਾਰੇ कैंडीडेट हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, मुअज़्ज़म ददराज जनरल सैकटरी साहब,
ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨਸੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੂਕ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਐਰਕਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਆਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਰਕ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਤਾਮਦ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਜੀਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ।